Guys, let's start with today's session. Okay. Today we'll take next topic in HTML, that is adding images. Okay. Next we'll see how to add images in your HTML page. Right? Adding images, will it make your web page more attractive? Obviously the appearance of your page will become more better. It will look more beautiful if you are adding images in the page. So now we'll see how to add images. So to add image, we have to use img tag. Getting img tag. Okay. Just remember, img tag is a empty tag. I've told you in the past there are two types of tag. One is the content tag and another is empty tag. Empty tag means which doesn't have anything between opening and closing. It will only have set of attribute. My opening tag will be there, but it doesn't have any closing tag. So they are called as empty tag. So img tag come under empty tag category because img tag doesn't have anything as a content between opening and closing. So it will only have opening tag and some set of attributes. Now what those attributes are? So some basic attributes like the name of your image file, which will be in src attribute. Then you can give the width of your image. Getting? Then you can decide the height of the image. And what should be the alternative text if this image is not found on the given path. जो src इक्वल टू फाईलचा पाथ दिला त्या पाथवर जर ती इमेज नसेल तर मग त्या जागी काहीतरी एक अल्टरनेटिव्ह टेक्स्ट रिप्लेस करायचं. So what will be the alternative text? All that a few standard attributes of this image tag, and image tag doesn't have closing. Getting? Because it's an empty tag, it's not a content tag. Okay? So how to create this image tag, I'll show you. So images can improve the design and the appearance of your web page. Whatever web page you create, obviously it will make it more attractive if you add images in it. Getting? So images play very important role in your web designing. How to add image? So as I said, we have to add image using img tag. So the HTML img tag is used to embed an image in a web page. Later we are going to see how to embed audio, how to embed a video. That too we are going to learn. Now we are just going to see how to add a image. Image kashi add karnar? By img tag. But as I said, img tag is a empty tag. Empty tag means you're understanding it's not a content tag. It doesn't have anything between opening and closing tag. म्हणजे ओपन टॅग क्लोज टॅगच्या मध्ये काहीच नाहीये म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो एम्प्टी टॅग. गेटिंग? So it will have just a opening tag and a set of attributes. त्याचे काही फिक्स सेट ऑफ काय असणार attributes. मग त्या attributes काय ते सांगतो. So it's an empty tag, it contains only attribute and it doesn't have any closing tag. So generally, whenever we say it's an empty tag, it will never have what? A closing tag. आता ह्याचा जनरल सिंटॅक्स बघून घ्या. ठीक आहे? And many times remember when the tag is empty tag, so we put a slash in that opening tag. This is a BR tag है. BR which puts a break. Getting? So we generally put a slash in that tag only because BR is a empty tag. तो एक empty tag है. ठीक है? तो see, the tag name is img, then its attribute is src. In src, you'll give the name of that image resource.
ती इमेज फाईल जिथे प्रेझेंट आहे त्याचा पाथ द्या. Then ALT, here you have to give the alternate text, but this text will be displayed only when the image is not found in this URL. म्हणजे हा दिलेला जो पाथ आहे त्या पाथवर जर ती इमेज फाईल ॲबसेंट आहे तर मग हे अल्टरनेटिव्ह टेक्स्ट डिस्प्ले होईल. गेटिंग? And width is the width of the image, which you can give fixed hard coded in terms of pixel, you can give it in terms of percentage, and same way height is. ओके, तर सगळ्या ॲट्रिब्यूट्स समजून घ्या. फर्स्ट SRC ॲट्रिब्यूट, अँड विच इज द कंपल्सरी ॲट्रिब्यूट. म्हणजे IMG टॅगचा मिनिमम एक ॲट्रिब्यूट लिहावाच लागतो, अँड दॅट इज SRC. करेक्ट? तो SRC ॲट्रिब्यूट विल कंटेन द नेम of the image which you want to display it in your HTML page. Okay, the required attribute that specifies the path to the image. Wherever your image is, तुमचा इमेज जिथे कुठे असेल त्या इमेज, ठीक आहे, चा हा पाथ द्यायचा. राईट? ओके, तो रिक्वायर्ड attribute that specifies the path to the image. Next is this ALT, in which you will give some text, but this text is displayed only when the image is absent. So in the given path, if the image is not found, so in place of that it will show this alternative text. See here, text which is shown when browser cannot find image. Okay, then the width and then the height. The width ला आपण काय देणार? तेवढे पिक्सल, जितक्या पिक्सलचा तुम्हाला तो इमेज दिसला पाहिजे. Either you can give it in pixel, you can give it in percentage. Getting? Okay, so both are specifying the width and height of the image in pixels. Agreed? Okay, then just one illustration. I'll give you an example where we will display what? Image. ठीक है? Done. Some images. Okay, we will download some images, or I'll just check if I have some in my machine. Few images I have, I'll just copy them. Okay, this is our ITCS Web 1 folder. What I'll do is I'll create another folder in it called images, and in that I'll copy this few images. Okay, all a JPG file with number 1 2 3 4 5 6. I have just saved and kept. You download it from any machine. Okay, I'll just create one simple example. I'll give name to it as image demo dot html. Okay guys, ठीक है? See HTML file. We'll just give title as image demo. Then what I'm doing is I'm creating a table of for example 3x2 6 images है ना, तो 3x2 का एक क्या बनाता हूँ? टेबल. ठीक है? TR और 2x3. नहीं, आता हे थीम चेंज करायला लागेल. इट विल टेक टाइम. ठीक है? म्हणजे तो बॅकग्राउंड थीम आय हॅव टू चेंज इट. ठीक आहे?
हा तेच आहे, पण ते आता मी आता माझा कोड टाईप करतो थांब. ठीक आहे, क्रिएटिंग वन रो with 3 cells. Okay, and in first cell I'm going to write image. Images is one folder. माझ्याकडे एक फोल्डर आहे इमेजेस, त्याच्यात 1.jpg आहे. ठीक आहे, ऑल्ट मध्ये तुम्हाला काय द्यायचं ते द्या. ठीक आहे, अँड हाईट I'll give 150 and width I'll give 150, right? And the same thing I'll just copy paste it. Three times in one row, and just give the image name as 1 2 3. And same way I will create one more row with 3 cells, and in that I'll put image 4 5 and 6. ठीक है, तो it can be anywhere, but then you have to give that path, no? So I prefer keeping it in which folder? The folder where your HTMLs are. So my HTMLs are in ITC Web 1. So inside that I created one folder images, and in that images I have copied some images. एक images नावाचा एक फोल्डर बनवला, त्याच्यात मी काही images काय करून ठेवले कॉपी. Then I created one HTML page with name as image demo.html. Okay, I changed the title. Then I've created one table. In that table there are 2 rows. Every row is containing 3 cells, td/td td/td td/, आणि त्याच्या आत मी एक img टॅग दिला आणि त्याला 1 2 3 4 5 6. Agreed? Okay, right guys? So img tag I have put inside td tag, td/td के बीच में img tag यूज किया. Okay, now run and see. Okay, can you see it has created a table, and inside that table 2 row 3 column, and in every cell there is an image with same width same height. Getting? Later when we will learn JavaScript and all, we will try to handle mouse and all. So if I bring the mouse over there, so that particular image will get what? Zoom, ती zoom करूया, असे खूप सारे फॅसिलिटीज आहे. विल डू इट. ठीक आहे, टेबल बॉर्डर वगैरे दिलं तर ते डिफरन्शिएट. ठीक है, now it just shows an outline to the image. कळता है? Cell spacing, cell padding we have learned in the past. ओके, तो अंदर से स्पेसिंग है, 2 सेल के बीच में स्पेसिंग है. अकॉर्डिंगली तुम्ही आपलं थोडे मॉडिफिकेशन्स करून बघा जे आपण पास्ट मध्ये बघितलंय ते. ठीक आहे, जमेल ना? यस ना नो?
color theme वगैरह देता है. I'll do the setting there properly. Done? Now let's proceed with something more. So how to add images and all, you got it. Quite simple. Later we have to see how to display these images from the database. Server side कडनं काय दाखवता यायला पाहिजे ते images. Okay, like suppose you are creating a website for shopping cart. So shopping cart, so your products will be in what? Database. तो डेटाबेस से जब प्रोडक्ट्स फेच करोगे तो उसके इमेजेस भी तो दिखाने पड़ेंगे ना वो प्रोडक्ट्स के. तो दैट टाइम रन टाइम वी शुड बी एबल टू शो दिस. हियर वी आर डूइंग इट हार्ड कोडेड. ठीक है. डन? ट्राइड ऑल ऑफ यू? इमेजेस तुमच्यावर आहे ना, तुम्ही काही इमेजेस डाउनलोड करून घ्या आणि डिस्प्ले करा. ठीक आहे. Right? Shall we proceed further? Now next very important thing we have to learn, that is HTML forms. Okay, just give me confirmation. Shall I move ahead? Images try केलेलं. For time being you can just display a single image and see. एखादी image दाखवून बघा. Make the work systematic. Keep it in your workspace folder only. Create a image folder, and in that image folder only keep your images. Getting? And then try to display that images. Okay. Now let's proceed further. Right, guys? We'll move ahead. Now next very important thing we are going to learn, that is HTML form. Okay, this is very important part of your website development. So what are HTML forms? So HTML form gives facility to user to enter some information, and then you can collect that information from the user and submit it to the server. Getting? So when we use forms, when we want to collect some information from the end user, and then after collecting that information we want to submit it to server side. So you can accept name, addresses, so many things, right? So many things we accept from the user. Username is there, password is there, your hobbies are there. So many things we can accept or collect as a data from user, and afterwards send that data to which side? Server side. The server side, you may be having some scripts which may collect that data and do some further processing on it. Getting? So HTML forms are for collecting the data from the user and submitting it to the server side. Now how to create these forms and all that I'll tell you. But an HTML form is used to collect user input. So that input can be a single line text, it can be multi-line text, it can be in the choices form, getting? It can be in the options form, it can be a single value in some range, it can be in the form of date, it can be in form of time, it can be in the form of color. So many different, you can accept emails, you can accept passwords, so many things are there. Getting? So an HTML form is used to collect user input, and after collecting that input we submit that information towards which side? Server side. And then server side, you can write any server side script. Server side scripts, there can be many, like you can write a PHP script, or you can write a JavaScript. JavaScript is JSP, yeah? Java server pages, not JavaScript. Java server pages, or you can write servlets, you can write ASP pages. Even in Python also it's possible. So you can write some server-side script in which you can collect that data,
and after collecting that data you can do some further processing on it. Getting? So how to do when we'll come to some server side part, then you'll understand. Now we are just going to see how to design forms. Then I'll tell you how we can process that data on the server side. So it is used to collect user input and then send it to server for processing. Now how we can create these forms? So there is a form tag. Getting? But alone form doesn't display anything. म्हणजे फक्त आपण फॉर्म टॅग वापरला एकदा फॉर्म आणि स्लॅश फॉर्म एवढाच टॅग वापरला तर तुम्हाला ब्राउझरमध्ये काहीच दिसणार नाही. Different user components if you want to create, then you have to use an input tag, and input tag is a empty tag again. Input tag empty tag है म्हणजे कळतं आहे त्याला closing tag. It will just have set of attributes. But using input tag you'll create different UI elements, visual components बनाएंगे. Text box, radio button, password box, वेगळे वेगळे इनपुट्स आहेत. रेंज बनाएंगे, कलर, ईमेल ड्रॉप डाउन आहे, वेगळे वेगळे इनपुट्स काय आहेत बनवू शकता यूजर एलिमेंट्स. बट उसके लिए हमें कौन सा वाला एलिमेंट लगेगा? इनपुट. बट इनपुट किसके अंदर होना चाहिए? फॉर्म. ओनली फॉर्म जब लिखोगे तो ब्राउजर में कुछ भी दिखने वाला नाही. गेटिंग? तर ऍक्च्युअल यूआय एलिमेंट्स बनवायला आपल्याला कशाची गरज पडेल? इनपुट टॅग या इनपुट एलिमेंट. एंड इनपुट एलिमेंट किसके अंदर एनकैप्सुलेट करना है? फॉर्म में. फॉर्म के भी काफी सारे एट्रीब्यूट्स है, वो भी एक एक करके देखेंगे. फॉर्म को भी बहुत सारे क्या है? एट्रीब्यूट्स. गेटिंग? तो वो एट्रीब्यूट्स भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो हाउ टू क्रिएट अ HTML फॉर्म. The HTML form element is used to create an HTML form for user input. तर HTML फॉर्म बनवायला आपल्याला कोणता टॅग लागणार आहे? फॉर्म टॅग. एग्रीड? क्लिअर? ओके. बट ओनली फॉर्म टॅग इज नॉट सफिशियंट. म्हणजे तुम्ही फक्त फॉर्म आणि स्लॅश फॉर्म लिहिला तर तुम्हाला तसंही काही ब्राउजरमध्ये दिसणार नाही. तो ब्राउजर में कुछ दिखना चाहिए तो आपको अलग अलग UI एलिमेंट्स बनाने पड़े. एंड अलग अलग UI एलिमेंट्स कैसे बनाओगे? बाय इनपुट एलिमेंट. एंड इनपुट एलिमेंट किसके अंदर एनकैप्सुलेट करना पड़ेगा? फॉर्म एलिमेंट. फॉर्म स्लैश फॉर्म एंड फिर उसके अंदर एनी नंबर ऑफ क्या रहेंगे? इनपुट एलिमेंट. गेटिंग? सी. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू क्रिएट अ HTML फॉर्म बाय यूजिंग अ फॉर्म टैग और फॉर्म एलिमेंट. The form element is a container for different user element, user input element. Like text field है, म्हणजे सिंगल लाइन टेक्स्ट एक्सेप्ट करायचा आहे, चेक बॉक्सेस आहेत, रेडियो बटन्स आहेत, सबमिट बटन्स आहेत. ये सब किसके अंदर आएंगे? फॉर्म के अंदर. फॉर्म स्लैश फॉर्म के अंदर आने वाला. गेटिंग? और ये सब जो है ये हम क्रिएट करेंगे बाय इनपुट टैग. एंड इनपुट एलिमेंट किसके अंदर आना चाहिए? फॉर्म एलिमेंट. गेटिंग? ओनली फॉर्म इफ आई यूज, नथिंग इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड इन द ब्राउजर. गेटिंग? See here. The HTML input element is used inside form element to provide different types of input components. तर आपल्याला वेगवेगळे कंपोनेंट्स जर क्रिएट करायचे तर आपल्याला कोणता एलिमेंट लागणार? इनपुट. गेटिंग? एंड इनपुट एलिमेंट किसके अंदर आएगा? फॉर्म एलिमेंट. तो सबसे पहले आएगा फॉर्म. फॉर्म को भी कुछ एट्रीब्यूट्स है. अभी टाइमिंग के लिए हम लोग फॉर्म के एट्रीब्यूट्स नहीं देख रहे हैं क्योंकि एनीवे वी आर नॉट गोइंग टू प्रोसेस एनीथिंग ऑन सर्व्हर साइड. तर सर्व्हर साइडला काही प्रोसेस करणार असाल तर मग इथे काही एट्रीब्यूट्स आहेत ते द्यावे लागतात. गेटिंग? लाइक मेथड एट्रीब्यूट है, एक्शन एट्रीब्यूट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो. क्लियर? एंड फिर इसके अंदर एनी नंबर ऑफ क्या आएंगे? इनपुट एलिमेंट. एंड फिर स्लैश फॉर्म. ओके. तो हाउ टू पुट दिस इनपुट एलिमेंट्स आई टेल यू. तो हाउ विल क्रिएट अ UI एलिमेंट, यूजर इंटरफेस कंपोनेंट और विजुअल कंपोनेंट कैसे बनाएंगे? बाय इनपुट. But then how input will know
that I'm supposed to create a radio button or a checkbox or a text field or a password. So there is a type attribute of input. इनपुटचा टाइप ॲट्रिब्यूट आहे आणि त्या टाइप ॲट्रिब्यूटला आपल्याला काय द्यावं लागतं, टाइपची व्हॅल्यू, आणि ती व्हॅल्यू जी द्याल त्याच्यावरनं कळतं काय UI एलिमेंट बनणार आहे. तो अगर मैंने लिखा टाइप इक्वल टू टेक्स्ट तो इट विल क्रिएट अ टेक्स्ट फील्ड, टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स तो इट विल क्रिएट अ चेकबॉक्स, टाइप इक्वल टू रेडियो तो इट विल क्रिएट अ रेडियो बॉक्स, टाइप इक्वल टू पासवर्ड तो इट विल क्रिएट अ पासवर्ड बॉक्स, टाइप इक्वल टू ईमेल तो इट विल क्रिएट अ ईमेल बॉक्स. ईमेल बॉक्स ये टेक्स्ट बॉक्स जैसे ही दिखता है, सिर्फ उसमें वैलिडेशन होता है कि जब भी आप कुछ डेटा एंटर करके सबमिट करोगे तो वो चेक करेगा कि उसमें एक वैलिड ईमेल है. वैलिड ईमेल में समझ में आया ना, विथ @ एंड ऑल दैट, गेटिंग. तो टाइप एट्रीब्यूट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइप एट्रीब्यूट से ही पता चलता है क्या यूजर इंटरफेस एलिमेंट बनने वाला है. एंड टाइप किसका एट्रीब्यूट है? इनपुट का. एंड इनपुट किसके अंदर आने चाहिए? फॉर्म. गेटिंग. मेनी एट्रीब्यूट्स आर देयर, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न. खूप सारे आहेत आणि ते वापरायचे. ठीक है. तो इनपुट एलिमेंट की कौन सी एट्रीब्यूट है? टाइप एट्रीब्यूट. एंड टाइप एट्रीब्यूट क्या डिसाइड करता है? क्या यूजर इंटरफेस एलिमेंट बनने वाला है. गेटिंग. डिसाइड्स विच इनपुट एलिमेंट विल बी डिस्प्लेड. गेटिंग. एंड दिस टाइप इज हुज एट्रीब्यूट? टाइप हा कोणाचा एट्रीब्यूट आहे? इनपुटचा. कळत आहे श्रीराम? राइट. रिमेंबर, I am a teacher and you are student. Clear? तर टाइप ॲट्रिब्यूट ला जी व्हॅल्यू द्याल त्याच्यावरनं ठरतं काय युजर इंटरफेस एलिमेंट बनणार आहे. काही युजर इंटरफेस एलिमेंट आहेत जे इनपुटनी नाही बनत, ते पण नंतर आपण बघणार आहे. देर आर सम UI एलिमेंट्स विच आर नॉट क्रिएटेड यूजिंग इनपुट, लाइक टेक्स्ट एरिया है, मीन्स आपको मल्टीलाइन टेक्स्ट फील्ड बनाना है तो उसके लिए अलग सा टैग दिया है कॉल्ड एज टेक्स्ट एरिया. या फिर अगर आपको एक ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाना है, ड्रॉप डाउन बॉक्स आता ज्यांचं स्विंग वगैरे झालंय जावामध्ये त्यांना बऱ्यापैकी रिलेट करता येत आहे. तर ड्रॉप डाउन बॉक्स जर बनवायचं असेल, याच्यावर क्लिक केलं की एक अशी ड्रॉप डाउन लिस्ट येते, तर त्याच्यासाठी वेगळं आहे, दॅट इज सिलेक्ट आहे. तो सिलेक्ट, टेक्स्ट एरिया ये अलग है, ये किसमें आते नहीं है, दे डोंट कम अंडर टाइप. या सिर्फ सिंपल पुश बटन बनाना है, ओनली पुश बटन बनवायचं आहे, तो मग बटन टैग है. तो बटन टैग, सिलेक्ट टैग, टेक्स्ट एरिया टैग वो अलग है. चेकबॉक्स इज विद दिस, डोंट वरी. चेकबॉक्स किससे बनने वाला है? बाय इनपुट गिविंग टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स. पण मी काय म्हणतो की काही असे UI एलिमेंट्स आहेत जे कशाने बनत नाही, इनपुटच्या टाइप एट्रीब्यूट. उसको बनाने के लिए और अलग से क्या है? टैग्स दिए. गेटिंग. जैसे ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाना है तो उसके लिए सिलेक्ट टैग दिया, सिलेक्ट स्लैश सिलेक्ट. मल्टी एरिया टेक्स्ट बॉक्स मैंने मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया दिया, टेक्स्ट एरिया स्लैश टेक्स्ट एरिया. तो वो भी हमें अलग से क्या करना है? डिस्कस करना है. अभी सिर्फ देखते हैं कि वो यूजर इंटरफेस एलिमेंट जो किससे बन सकता है, टाइप एट्रीब्यूट. टाइप इक्वल टू को देकर बन जाएगा. नॉर्मल पुश बटन भी बनाना है, ओनली पुश बटन, तो भी क्या दिया हुआ है? एक अलग सा टैग कॉल्ड बटन टैग, बटन स्लैश बटन टैग. गेटिंग. तो वी विल बी यूजिंग दैट टू, वो भी सेपरेटली बताता हूं. अभी पहले एक एक करके ये टाइप एट्रीब्यूट्स देखते हैं. ओके. उसमें देखो फर्स्ट है इनपुट, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट. Many more attributes are there. I'll tell you everything at appropriate time. Don't worry. ठीक है. तो अगर मैंने इनपुट टाइप इक्वल टू क्या लिया? टेक्स्ट, तो इट विल क्रिएट अ सिंगल लाइन एडिटेबल टेक्स्ट. सिंगल लाइन एडिटेबल टेक्स्ट बनाएगा. एडिटेबल टेक्स्ट में समझ रहा है, यू कैन ब्रिंग द कर्सर इनसाइड इट, यू कैन टाइप इनसाइड इट, यू कैन डिलीट एनीथिंग फ्रॉम इट. तो जनरली यूजर का नेम लेना है या उसका फर्स्ट नेम लेना है, फादर्स नेम, व्हाटएवर. तो एक लाइन का एडिटेबल टेक्स्ट जब यूजर से एक्सेप्ट करना है तो हम टाइप इक्वल टू क्या देते हैं? टेक्स्ट. एंड एक्चुअली
टाईप की डिफॉल्ट व्हॅल्यू टेक्स्ट ही होती. म्हणजे आपण जर इनपुट बनवला आणि त्याला टाईप ऍट्रिब्यूटला काहीच नहीं दिलं तर तो बाय डिफॉल्ट क्या घेतो, टेक्स्ट. टेक्स्ट ये डिफॉल्ट वैल्यू है किसकी, टाइप एट्रीब्यूट की. गेटिंग? और ये बनाएगा 20 कैरेक्टर विड्थ का डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स. टेक्स्ट बॉक्स कितने कैरेक्टर विड्थ का, 20. ठीक है. तो प्रोवाइड्स अ सिंगल लाइन एडिटेबल टेक्स्ट इनपुट फील्ड. त्याला इनपुट फील्ड का म्हणायचं है, क्योंकि इससे ही तो हम लोग यूजर से क्या कलेक्ट करेंगे, डेटा. आपण युजर कडनं डेटा याच्या थ्रूच काय करणार आहे, कलेक्ट. आणि मग तो डेटा आपण कोणाला सेंड करणार आहे, सर्व्हर. नाउ द क्वेश्चन मे बी व्हेन द डेटा इज सेंड, वो डेटा सेंड कब होता है, आई टेल यू, डोंट वरी. पहला इनपुट टाइप इक्वल टू काय समझून घ्या, टेक्स्ट. तो अगर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट दिया, नॉर्मली ये टेक्स्ट को अगर कुछ वैल्यू देता ही नहीं है, इनपुट का टाइप एट्रीब्यूट का डिफॉल्ट वैल्यू ही वैसे भी क्या है, text. Okay, then the default value of type attribute is text, which I have already told you. ठीक है? Okay, then next one more is there. We will discuss all this, few will discuss, and then थोडेसे आपण डिस्कस करूया आणि मग हे करून पण बघूया, मग परत अजून थोडे बघूया करून, सगळे एकत्र नको. म्हणजे ते all at a time if you see the demonstration, तुम्हाला तसंही जमत नाही. क्लियर? ओके. सेकंड इज इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड. इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड. नाउ इफ यू आर यूजिंग इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, here also it will create a single line editable text input field only. एक लाईनची एडिटेबल टेक्स्ट आहे, बट इट डझंट इको व्हॉट यू आर टायपिंग. तुम्ही काय टाईप करताय ते इको नाही, त्याच्या जागी ऍस्ट्रिक्स येतात. ऍस्ट्रिक्स म्हणजे स्टार्स येतात. तर तुम्ही काही टाईप केलं तरी काय दिसणार, स्टार. ओके. So this also provides you with a single line editable password input field. Getting? And the characters in a password field are masked. Mask म्हणजे कळला ना, हाईड. मास्क घालतो ना, चेहरा हाईड करता ना तुम्ही. क्लियर? बरोबर की नाही, राईट? मास्क घालून चेहरा हाईड करता. तो द कॅरेक्टर्स इन अ पासवर्ड फील्ड आर मास्क. मास्क म्हणजेच काय, हाईड होत आहे. म्हणजे तुम्ही जे काही टाईप करताय त्याच्या जागी काहीतरी दुसरं दिसतंय. कळताय? ओके. तो शोन ॲज ॲस्टरिक्स और सर्कल्स. ठीक आहे. डिपेंड करता, आपण ते प्रॉपर्टी चेंज करू, म्हणजे सीएसएस नी पण त्याला अजून ब्युटिफाय करता येतो. ठीक आहे. इथपर्यंत कळलंय? ठीक आहे. आता नेक्स्ट बघा. नेक्स्ट इज इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट. इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट. तो इट विल क्रिएट वन पुश बटन. एक बटन बनवणार है, पण त्या बटनची खासियत क्या है, इट इज हैविंग स्पेशलिटी. गेटिंग? बनाएगा एक स्टैंडर्ड पुश बटन. ओके. उसमें डिफॉल्ट लिखा हुआ रहेगा सबमिट, बट आपको और कुछ लिखना है इसके ऊपर. सबमिटच्या जागी काहीतरी वेगळं पाहिजे, ओके पाहिजे, सेव्ह पाहिजे, काही दुसरं नाव लिहायचं आहे, तर मग व्हॅल्यू प्रॉपर्टी असते. किसकी व्हॅल्यू प्रॉपर्टी? इनपुट की. इनपुट की और एक प्रॉपर्टी रहेगी. प्रॉपर्टी म्हणजे ऍट्रिब्यूट. तर टाइप इक्वल टू सबमिट लिहा आणि व्हॅल्यू इक्वल टू जे काही द्याल. अभी वैल्यू इक्वल टू ओके दिया, तो वो बटन पे क्या लिखा हुआ रहेगा, इंस्टेड ऑफ सबमिट ओके. डिफॉल्ट उस पे क्या लिखा रहता है, सबमिट. बट वैल्यू इक्वल टू दोगे तो जो वैल्यू दिया है वो उस पे एज अ लेबल आएगा. एंड सबमिट का स्पेशलिटी क्या है, इट्स अ पुश बटन, बट वेनेवर यूजर क्लिक ऑन इट, whenever user clicks on it, the entire form data is collected and it is sent to the server. But remember, it is sending a HTTP request to the file which you have mentioned in the action attribute of form tag. form tag जो रहेगा वो फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट में जो फाइल का नाम लिखा है
गेटिंग? अभी एक्शन में मैंने लिखा है a.php, ऑब्वियसली ये a.php किस साइड रहेगी? वेरी गुड, सर्वर साइड, क्योंकि PHP इज नॉट अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, PHP इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, ASP इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, JSP, सर्वलेट्स, ये सारे सर्वर साइड के कोड है। तो एक्शन इक्वल टू कुछ फाइल का नाम दिया है, क्लियर? बट ये एक्शन एट्रीब्यूट है किसका? फॉर्म टैग का। फॉर्म जब बनाओगे ना फॉर्म, तो वहां एक्शन इक्वल टू कुछ फाइल का नाम लिखोगे एंड फिर पूरा फॉर्म डिजाइन होगा। अब डेटा एंटर करोगे एंड किस पे क्लिक करोगे? सबमिट। द मोमेंट यू क्लिक ऑन सबमिट, इट विल जनरेट अ HTTP रिक्वेस्ट। तुम्हारा ब्राउजर क्या जनरेट करेगा? एक HTTP रिक्वेस्ट, एंड वो रिक्वेस्ट किसके लिए जाएगा? टू दैट रिसोर्स विच यू हैव रिटन इन एक्शन। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि एक्शन में PHP फाइल ही है, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम लोग सर्वर साइड किस में प्रोसेसिंग कर रहे हो, PHP में कर रहे हो या ASP में कर रहे हो या पाइथन में लिख रहे हो, और वेदर यू आर डूइंग इट ऑन द सर्वर साइड इन JSP और सर्वलेट, इट इज अप टू यू। तो उसका इधर नाम लिखने का, गेटिंग? तो जब भी मैं किस पे क्लिक करूंगा? सबमिट पे, तो क्या जनरेट होगा? एक HTTP रिक्वेस्ट। वो रिक्वेस्ट किसके लिए जाएगा? वो रिसोर्स के लिए जिसका नेम अपने किस में दिया है? एक्शन एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग। बट जब वो रिक्वेस्ट जाएगा तो आई होप यू नो इट दैट क्या बनता है? एक HTTP रिक्वेस्ट पैकेट, एंड वो पैकेट में हेडर पार्ट रहता है और बॉडी पार्ट रहता है, गेटिंग? तो ये जो भी फॉर्म डेटा है, वर जो काही तुम्ही फॉर्म मध्ये एंटर केलंय, टेक्स्ट बॉक्स में रेडिओ बटन, चेक बॉक्स, पासवर्ड, वो पूरा डेटा एक तो बॉडी में स्टोर होकर जाएगा या एक तो हेडर में URL को अटॅच होकर जाएगा। URL ला तरी अटॅच होऊन जाईल किंवा बॉडी मध्ये, पण मग आता तुम्हाला प्रश्न असेल कि वो URL को अटॅच करके कैसे जाएगा हेडर में या बॉडी में? तो देर इज अ मेथड एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग। अगेन फॉर्म टैग की और एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्या है? मेथड। एंड मेथड में अगर मैंने पोस्ट दिया रहेगा तो ये पूरा फॉर्म डेटा किसमें स्टोर होकर जाएगा? बॉडी, गेटिंग? पोस्ट जब भी लिखता हूं मेथड, तो तुम्हारा पूरा फॉर्म डेटा किसमें स्टोर होकर जाता है? बॉडी ऑफ दैट HTTP रिक्वेस्ट। एंड फिर वो डेटा सर्वर साइड जाने के बाद तुम्हारी स्क्रिप्ट वो रीड कर सकती है। आप कहोगे वो स्क्रिप्ट कैसे रीड करेगा? तो हमें वो सर्वर साइड कोडिंग सीखना पड़ेगा। तो व्हेन वी विल कम टू दैट पार्ट यू विल अंडरस्टँड। आता फक्त लक्षात घ्या, जर मेथड इक्वल टू काय लिहिलंय? पोस्ट, तर तो पूर्ण डेटा कशा स्टोर होतो? त्या पॅकेटच्या बॉडीमध्ये, आणि मग ती पॅकेट कोणाला जाते? सर्वर साइड। एंड अगर मैंने मेथड यहां लिखा है गेट, गेटिंग? वी विल बी सीइंग द सेपरेट डिफरेंस बिटवीन गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड। गेट मेथड पोस्ट मेथड में क्या डिफरेंस है पूरा स्लाइड पे दिखाने वाला, डोंट वरी। बट गेट से दिया रहेगा तो वो फॉर्म डेटा इधर हेडर में ही जाएगा। हेडर में ही ये जो फाइल आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना a.php, उसी को आगे क्वेश्चन मार्क करके URL में ही अटॅच होकर जाएगा, कळतंय का? तिथेच तुमचा डेटा नेम इक्वल टू एम्परसेंड एज इक्वल टू असं करून ते URL लाच अटॅच होऊन कोणाला जातं? सर्व्हरला। पण URL ला अटॅच होऊन सर्व्हरला कधी जाईल? जर तुम्ही मेथड इक्वल टू काय दिली आहे? गेट। मेथड किसके एट्रीब्यूट? फॉर्म की, गेटिंग? एंड मेथड इक्वल टू पोस्ट दिया रहेगा तो तुम्हारा पूरा फॉर्म डेटा URL को अटॅच होगा या रिक्वेस्ट पैकेट के बॉडी में स्टोर होकर फिर सर्वर साइड जाएगा। बॉडी मध्ये ठेवणार आणि मग तो कुठे जाईल? सर्व्हरकडे। फरक कळतोय का ऑल ऑफ यू? हॅलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3, क्लियर आहेत का जागे सगळे? क्लियर? आय होप यू आर हियर, ठीक आहे? तर मेथड कोणाची एट्रीब्यूट आहे? फॉर्मची। एक्शन पण कोणाची एट्रीब्यूट है? फॉर्म। एक्शन में किसका नाम लिखता है? वो सर्वर साइड के स्क्रिप्ट का नाम जिसको हमें रिक्वेस्ट करना है। बट वो स्क्रिप्ट कब रिक्वेस्ट होगी? जब आप लोग फॉर्म के किस बटन पे क्लिक करोगे? सबमिट। तर लक्षात घ्या, जेव्हा फॉर्म डिझाइन झाला, सगळे UI एलिमेंट्स आले, तुम्ही डेटा एंटर केला आणि कशावर क्लिक केला, तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया, क्या जनरेट होने वाला है? जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं तो तुम्हारा ब्राउजर
क्या जनरेट करेगा? एक HTTP रिक्वेस्ट। बट जब वो HTTP रिक्वेस्ट जाएगा तो वो रिक्वेस्ट पैकेट को एक हेडर एंड एक बॉडी है, तो वो डेटा एक तो हेडर में URL को अटैच होकर जाएगा या बॉडी में अलग से रखकर जाएगा। तो अगर आपने मेथड इक्वल टू क्या दिया है, मेथड इक्वल टू पोस्ट, तो वो पूरा डेटा बॉडी में जाएगा। एंड मेथड इक्वल टू गेट दिया है तो वो पूरा डेटा URL को ही आगे क्वेश्चन मार्क करके आगे अटैच होकर जाएगा। गेटिंग? बट मेथड किसके एट्रीब्यूट है? फॉर्म की। एंड HTTP रिक्वेस्ट किसके लिए जनरेट होगी? HTTP रिक्वेस्ट कोणासाठी जनरेट होईल? त्या रिसोर्स साठी ज्या रिसोर्सचं नाव तुम्ही ऍक्शन एट्रीब्यूट मध्ये दिलेलं आहे। एंड ऍक्शन एट्रीब्यूट किसका? फॉर्म। तो फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट में जिस रिसोर्स का नाम लिखा है उसके लिए क्या जनरेट होगा? HTTP रिक्वेस्ट। गेटिंग? बट वो रिक्वेस्ट कब जनरेट होगी? वो रिसोर्स के लिए। व्हेन आई क्लिक ऑन सबमिट, तो सबमिट दिखता है बटन जैसे, बट उसको स्पेशलिटी क्या है कि जब भी यूजर सबमिट पे क्लिक करता है एक HTTP रिक्वेस्ट जनरेट होता है। किसके लिए HTTP रिक्वेस्ट? वो रिसोर्स के लिए जिसका नाम मैंने एक्शन एट्रीब्यूट में लिखा है, ऑफ फॉर्म टॅग। गेटिंग? तर फॉर्म टॅगच्या ऍक्शन एट्रीब्यूट मध्ये ज्या रिसोर्ससाठी मी रिसोर्सचं नाव लिहिलं त्या रिसोर्ससाठी काय जनरेट होईल? एक HTTP रिक्वेस्ट। कळतंय? आणि ती रिक्वेस्ट जेव्हा जनरेट होईल तेव्हा त्याला हेडर आणि काय असणार आहे? बॉडी। मग त्या हेडर मध्ये किंवा बॉडी मध्ये तो फॉर्म डेटा जाणार कोणाला? सर्व्हरकडे। मग सर्व्हरकडे गेल्यावरती स्क्रिप्ट कशी रीड करेल ते तुम्हाला सर्व्हर साइड टेक्नॉलॉजी जेव्हा शिकाल तेव्हा तुम्हाला कळेल कि स्क्रिप्ट मध्ये तो रीड कसा करायचा। तो PHP ने अपनी मेथड दिली असेल तो डेटा रीड करायला, तो जावा ने उसका अपना मेथड दिया रहेगा, क्योंकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो उन्होंने OOP स्टाइल दिया रहेगा। जावा ने कुछ अरेज दिया है एंड वो अरेज से वो डेटा हम क्या कर सकते हैं? रीड। बट वो तो सर्व्हर साइड का पार्ट हो गया। गेटिंग? पण सबमिट मुळे काय होतं हे कळलं। तो इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट दिया तो विल इट डिस्प्ले वन स्टैंडर्ड पुश बटन? यस, एक स्टैंडर्ड पुश बटन। And whenever I click on it, it generates a request for the resource whose name you have given in action attribute of form tag. तो form tag में जिस resource का नाम अपने action attribute को दिया है उसके लिए क्या जनरेट होगा? रिक्वेस्ट। बट जब रिक्वेस्ट होता है तो एक रिक्वेस्ट पैकेट बनता है, तो वो जो भी फॉर्म का डेटा है वो कलेक्ट होगा और वो पैकेट में रखकर सर्वर जाएगा। बट जाते समय एक तो वो डेटा हेडर में रहेगा या बॉडी। बॉडी मध्ये कधी तर मेथड इक्वल टू पोस्ट आहे आणि मेथड कोणाची एट्रीब्यूट? परत फॉर्मची। आणि मेथड इक्वल टू गेट असे वो भी फॉर्म का ही एट्रीब्यूट है, तो गेट है तो वो डेटा URL को। क्लियर? होप इट इज क्लियर। सी हियर, तो प्रोवाइड्स अ बटन फॉर सबमिटिंग फॉर्म डेटा टू अ फॉर्म हैंडलर। ओके, अभी कहोगे वो फॉर्म हैंडलर कौन है? ठीक है, तर इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट म्हटल्यावर काय होणार आहे? एक बटन प्रोवाइड करना है, एक स्टैंडर्ड बटन जिसका लेबल क्या रहेगा? सबमिट। लेबल कुछ अलग चाहिए रहेगा तो वैल्यू इक्वल टू करो, जो भी वैल्यू इक्वल टू लिखोगे तो वो वैल्यू को जो वैल्यू दी है वो उस बटन पे दिखेगी। बट तो इट प्रोवाइड्स अ बटन, बट दैट बटन इज स्पेशली फॉर व्हाट? वो बटन स्पेशली किसके लिए बनाया गया? फॉर कलेक्टिंग दैट ऑल फॉर्म डेटा वॉट एवर यू हैव एंटर्ड एंड पुशिंग इट टू whom? टू द सर्वर। गेटिंग? तो वो पूरा डेटा सबमिट करने का फैसिलिटी किससे मिलता है? ये बटन से। बट वो डेटा देगा किसको? फॉर्म हैंडलर। एंड व्हाट इज फॉर्म हैंडलर? द सर्वर साइड स्क्रिप्ट। फॉर्म हैंडलर क्या होगा? कोई भी एक स्क्रिप्ट जो किस साइड रन होने वाली है? सर्वर साइड। एंड वो फॉर्म हैंडलर का नाम हम कहां मेंशन करेंगे? एक्शन एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टॅग असं क्लिअर सांगा। ऍक्शन हे ते क्लिअर? बरोबर ना? क्लिअर? सगळं सेंटेन्स पूर्ण बोलावे। क्लिअर? तो फॉर्म हैंडलर इज द सर्वर साइड स्क्रिप्ट and its name is mentioned
in the action attribute of your form tag. तो फॉर्म टॅगच्या ऍक्शन ऍट्रिब्यूट मध्ये कोणाचं नाव लिहिलेलं आहे त्या फॉर्म हँडलरचं, पण तो आहे कोणत्या साइडला? सर्वर साइड. वो सर्वर साइड की स्क्रिप्ट है, ये याद रखना. क्लियर? द फॉर्म हैंडलर इज टिपिकली अ सर्वर पेज विथ अ स्क्रिप्ट फॉर प्रोसेसिंग इनपुट डेटा. तो जो फॉर्म हँडलर आहे ती एक स्क्रिप्ट आहे जी कोणत्या बाजूलाच रन होती आहे? सर्वर साइड. करेक्ट? मग ती पीएचपी स्क्रिप्ट पण असू शकते, ती जेएसपी असू शकते. जेएसपी म्हणजे जावा. करेक्ट? or it can be servlet also, which is also Java, and it can be a ASP page also. खूप सारे टेक्नॉलॉजीज आहे जे किस साइड रन होत आहे? कोणत्या बाजूला? सर्वर साइडला. रुबी ऑन रेल्स वगैरे ऐकलंय? रुबी ऑन रेल्स अँड ऑल, ते पण सर्वर साइड टेक्नॉलॉजीज मध्ये. ठीक आहे? तो द फॉर्म हँडलर इज अ सर्वर साइड script, and that script is going to collect that data and do processing on it. मग ह्या स्क्रिप्ट मध्ये कधी कधी पुढे डेटाबेसचे कनेक्शंस पण होत असतील का? ये स्क्रिप्ट आगे जाके और किसी सर्वर्स से भी कम्युनिकेट करता रहेगा क्या? यस, ऑब्वियसली. करेक्ट? जैसे अगर आपका रजिस्ट्रेशन पेज है तो वो डेटा कहां से कलेक्ट करेगा? फॉर्म से. और फिर वो फॉर्म से कलेक्ट हुए डेटा के लिए एक इंसर्ट क्वेरी बिल्ड करेगा, एंड फिर वो रिकॉर्ड किसमें डंप कर देगा? किसी टेबल में, एंड फिर तुम लोगों को मैसेज देगा यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली. पण यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ये बता रहा है, ठीक है, बट जो कलेक्ट किया हुआ फॉर्म डेटा है वो किसी ना किसी टेबल में जाके सेव करता रहेगा ना. तो वो टेबल किसके पास है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के पास है. करेक्ट? तो आई होप यू आर लर्निंग एसक्यूएल क्वेरीज ऑल्सो. तो हाउ दे आर गोइंग टू कम इन टू एक्शंस ये समजेगा अभी. क्लियर? इथपर्यंत कळलं? आणि लक्षात घ्या, द फॉर्म हँडलर इज स्पेसिफाईड इन विच ॲट्रिब्यूट? ॲक्शन ॲट्रिब्यूट ऑफ युअर फॉर्म टॅग. तो जो फॉर्म टॅग आहे तर फॉर्मला कमीत कमी दोन ॲट्रिब्यूट तर आपण देतोच, एक ॲक्शन आणि एक मेथड. बर, पण मेथड नाही दिलं तर बाय डिफॉल्ट गेट असतं. लक्षात घ्या, मेथड अगर नहीं दिया तो इट इज बाय डिफॉल्ट गेट. ओके? Then quickly one more we'll see, and then using this we'll create one simple form. मग अजून बरेच येतं बघायचं आपल्याला. खूप इनपुट एलिमेंट्स आहेत. रेडिओ बटन्स बघायचे आहेत, चेकबॉक्स आहेत, डेट आहे, टाइम आहे, कलर आहे, रेंज आहे, खूप सारे. ओके? ओके, खूप सारे ॲट्रिब्यूट्स असतात. लक्षात घ्या, आणि ते ॲट्रिब्यूट्स इंटेलिजंटली बरोबर काय करता यायला पाहिजे. यूज कौन से ॲट्रिब्यूट किस पर्पज के लिए ते प्रॉपरली अंडरस्टैंड पाहिजे. नेक्स्ट वन इज देयर, दैट इज टाइप इक्वल टू रीसेट. अभी टाइप इक्वल टू रीसेट को भी कुछ स्पेशलिटी दिया. ये भी एक पुश बटन ही आने वाला है. तो पण एक पुश बटन है जिसके ऊपर भी बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ रहेगा? रीसेट. तुम लोगों को कुछ अलग देना है तो तुम्हें पता है वैल्यू ॲट्रिब्यूट, वैल्यू इक्वल टू क्लिअर लिहिलं तर ह्याच्यावर क्लिअर दिसेल. करेक्ट? पण या बटनची पण काहीतरी स्पेशालिटी आहे. तो व्हेनेवर आय क्लिक ऑन द रीसेट बटन इट विल क्लिअर ऑल द इनपुट फील्ड्स इन युअर फॉर्म. म्हणजे तुमच्या पूर्ण फॉर्म टॅग मध्ये जेवढे इनपुट्स तुम्ही केले होते, फॉर्म स्लैश फॉर्म, एंड बीच में काफी सारे इनपुट्स बनाए थे, फर्स्ट इनपुट, सेकंड इनपुट, थर्ड इनपुट, और लास्ट में ये रीसेट इनपुट है. अब ये फॉर्म दिखेगा, हमने कुछ डेटा एंटर किया है एंड मैंने कौन से बटन पे क्लिक किया? रीसेट. ऑल योर इनपुट फील्ड्स विल गेट व्हाट? क्लियर्ड, इरेज हुई. तो टेक्स्ट बॉक्स में कुछ डेटा रहेगा वो एम्प्टी हो जाएगा. क्लियर? पासवर्ड बॉक्स मध्ये काय असेल तो एम्प्टी होऊन जातो. देन चेकबॉक्स अगर टिक हुआ रहेगा तो वो क्लियर हो जाएगा. रेडियो बटन अगर सिलेक्टेड है तो वो क्लियर हो जाता है. मैंने इन शॉर्ट सारे इनपुट एलिमेंट्स का कंटेंट क्या हो जाता है? इरेज. गेटिंग? तो इट इज ऑल्सो हैविंग वन स्पेशलिटी. आई होप यू गॉट इट.
तो प्रोवाइड्स अ रीसेट बटन that will reset all form values to their default values. Getting? वो जो भी आपके इनपुट एलिमेंट्स है उनकी सबकी वैल्यू इरेज होकर क्या रीसेट हो जाएगी टू द डिफॉल्ट वैल्यू. गेटिंग? जैसे टेक्स्ट बॉक्स को अगर कुछ वैल्यू दिया नहीं रहेगा तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? ब्लैंक. तो टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक हो जाएगा, पासवर्ड ब्लैंक हो जाना. गेटिंग? Right? Okay, so provides a reset button that will reset all form values to their default value. Okay, now few more are there, पण त्याच्या आधी आपण हे चार वापरून एक काय बनवूया, एक फॉर्म बनवूया. हे चार यूज करून एखादा सिंपल फॉर्म. मग अजून बरेच आहेत. रेडिओ बटन आहे, चेकबॉक्स आहे, खूप सारे अजून बघायचे आहेत आपल्याला. ठीक आहे, क्विकली एक एग्जाम्पल घेऊया टू वाइंड अप विथ टुडेज सेशन. Okay, I'll create one new file. I'll give name as form demo किंवा मी इथे लॉगिन बॉक्स देतो त्याला, लॉगिन डॉट HTML. ठीक है, मैं क्या दे रहा हूं? लॉगिन डॉट HTML. ठीक है, ये एमिट जो रहता है दैट इज व्हेरी व्हेरी हेल्पफुल. जो एमिट येतं हे इतकं हेल्पफुल आहे की आपलं काम किती फास्ट करून टाकतं. अँड दॅट इज द ब्युटी ऑफ दिस VS कोड. गेटिंग? असं सेम बाकीचे ID मध्ये पण असतं, सेमच आहे. अदर IDs ऑल्सो गिव दॅट फॅसिलिटी. टाइटल आई एम चेंजिंग टू लॉगिन. ठीक है, सी ऑल ऑफ यू केयरफुली. पहले मैं एक टेबल बना रहा हूं. ठीक है, टेबल. फिर मैं TR बना रहा हूं. TR में TD डालता हूं. पहले TD में बोल्ड में मैं लिख रहा हूं यूजर नेम किंवा यूजर ID. ठीक है, राइट? समझून घ्या पहिलं. ठीक है, ऐका. और एक TD ले रहा हूं. पहले टेबल लिया, पहला रो, पहले रो के पहले सेल में बोल्ड में लिखा है यूजर ID. उसी रो के और एक सेल में मैं इनपुट ले रहा हूं, क्लियर, जिसका डिफॉल्ट टाइप टेक्स्ट है. यस और नो? ऑल ऑफ यू, हेलो हेलो, क्लियर? बरेच वेगळ्या विश्वात जातात का? इथपर्यंत क्लिअर? हा पहिला रो आहे. पहिल्या रोचे दोन सेल आहेत. पहिल्या सेलमध्ये बोल्ड मध्ये लिहिलं यूजर ID, दूसऱ्या सेलमध्ये एक इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा. और एक रो बनाता हूं, अगेन एक TD, उसमें बोल्ड में लिख रहा हूं पासवर्ड. ठीक है, उसी रो में और एक TD बना देता हूं, उसमें इनपुट ले रहा हूं बट टाइप इक्वल टू पासवर्ड दे रहा हूं. कट्टे करें? ठीक है, टाइप इक्वल टू पासवर्ड. फिर अगेन एक रो क्रिएट कर रहा हूं, TD, और पहले TD में इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट ले रहा हूं. एंड उसी रो में और एक TD, उसमें अगेन इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट. ठीक है, दैट्स ऑल. इतना ही एक फॉर्म है. बट ये पूरा सिर्फ टेबल बना है, इसको फॉर्म टैग में नहीं डाला. तो क्या करता है, इधर एक फॉर्म ले लेता हूं. आता सध्या ऍक्शन एम्प्टी ठेवतोय आणि हा सगळा टेबल त्या फॉर्म मध्ये टाकतो. ठीक है, दैट्स ऑल. राइट? वही टाइमिंग के लिए इतना ही. तो हमने ये चारों UI एलिमेंट्स देखे हैं ना अभी. आता आपण टेक्स्ट फील्ड बघितलाय, पासवर्ड फील्ड बघितलाय,
सबमिट बघितलाय आणि रिसेट. मग ते सगळ्यांना मी इथे वापरलंय. ठीक आहे. आता आपल्याला सर्व्हर साइड हँडलिंग कसं करायचं ते येत नाही, म्हणून मी इथे ऍक्शन मध्ये काहीच रिसोर्सचं नाव नाही दिलं. गेटिंग? मी मेथड नाही वापरलाय, ऍक्शन नाही वापरलाय. Why? Because we are not going to process anything on the server side. But when the time comes, we will be seeing how to collect this data and process it on the server side. ठीक है? Just run it and see. Okay, can you see? Is it showing one form in which there is user ID and then a text box, password, then a text box, submit and reset. ठीक है? Whatever I type, you can see password में कुछ भी टाइप किया तो वो दिख रहा नहीं है. ठीक है? अभी सबमिट करोगे तो वो वहीं आने वाला है. क्यों? क्योंकि आपने एक्शन empty string दिया है, तो it considers whom only as the destination, the same file. Getting? But actually हमें एक्शन में वो रिसोर्स का नाम देना है जो सर्वर साइड है, एंड सर्वर साइड वो रिसोर्स ये क्लायंट से आया हुआ डेटा रीड करके आगे प्रोसेसिंग करेगा. ठीक आहे. आणि सपोज इथे आपण काही दिलं आणि रिसेट वर क्लिक, तर बघा, इज इट क्लिनिंग द टेक्स्ट बॉक्स? यस नो? क्लिअर? अजून खूप ऍट्रिब्यूट्स आहेत आणि याला व्हॅल्यू देऊ शकता तुम्ही. ठीक आहे. आता इथे व्हॅल्यू इक्वल टू ओके दिला आणि इथे व्हॅल्यू इक्वल टू क्लियर दिला, तो अकॉर्डिंगली वो लेबल दिखेगा. इथे येतं ओके आणि क्लियर. तर तसे चेंजेस करून बघा तुम्ही. ठीक आहे. मेनी मोर थिंग्स टू लर्न, डोंट वरी. In 1 hour we cannot learn the entire HTML. There are people on YouTube which say learn complete HTML in 90 minutes. असे असतात. म्हणजे तुम्ही BE 4 वर्ष करूच नका. क्लिअर? Why you are spending your time for 4 years degree? Getting? Then 2 years post graduation, 6 years. I have given 6 years. Then 4 years plus 6 years. गरज नहीं है ना. 1 घंटे में अगर आप लोग पूरा HTML, फिर और 1 घंटे में जावास्क्रिप्ट, असं करून महिन्याभरात तुम्ही डायरेक्ट सॉफ्टवेअर डेव्हलपर. ठीक आहे. इथपर्यंत क्लियर है? नेक्स्ट टाइम समथिंग मोर टू लर्न और बहुत सारी चीजें सीखेंगे.